اموات کی پہنچ چکی ہے، اور اس طریقے سے اگین جو کرونا وائرس کے خلاف جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں، ایٹ اے ٹائم ہم دو جنگ لڑ رہے ہیں۔ جیسے پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب نے کہا، پہلے دن سے ان کا جو موقف ہے، ایک طرف ہم جنگ لڑ رہے ہیں کرونا وبا کے خلاف جو کہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس طریقے سے پاکستان میں جو حالات ہے وہ آپ کے سامنے۔ دوسری طرف ہم جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ غربت افلاس جو ہمارا وہ طبقہ ہے، اس کے حوالے سے جو ایک جو اسکیم آئی ہے جو پہلے کے احساس ایمرجنسی کیش پروگرام، اس کے تحت ہم نے خیبر پختونخوا میں جو ہماری ٹوٹل وہ ہے جو اس میں جو مستفید ہوں گے وہ تقریباً 22 لاکھ خاندان ہیں، اس میں جو 12,000 فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے تھے، اس میں تقریباً وہ کافی جگہوں پہ تقسیم ہو چکے ہیں اور بھی ساتھ ہو رہے ہیں۔ اور اس طریقے سے دوسرے فیز میں ہماری خیبر پختونخوا حکومت وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق ہم 6,000 دیں گے یکمشت، وہ دوسرے فیز میں ہے۔ اور اس طریقے سے جو ہماری زکوٰۃ کے مد میں جو پہلے 29,000 فیملیز تھے، اب اس کو بڑھا کر وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے 1 لاکھ لوگوں کا کر دیا، 1 لاکھ خاندان ہوں گے اور ان کو 12,000 اس پیکج کے علاوہ ملیں گے۔ تو ہم ساتھ ساتھ ساری چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس کے مطابق اپنے تمام جو ہمارے وسائل ہیں، چاہے وہ فیڈرل حکومت کی طرف سے ہو، چاہے ہمارے خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے، وہ ہم اپنی عوام پہ لگا رہے ہیں۔ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں چونکہ یہ بہت بابرکت مہینہ ہے، انشاءاللہ تعالی اگر ہم اس میں 2-3 چیزیں میں اس میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ اس حوالے سے ہم نے صوبائی حکومت جو خورد و نوش کی جو اشیاء ہے اس کی باقاعدہ مانیٹرنگ ہو رہی ہے، آن لائن ڈیش بورڈ کی مدد سے صوبائی حکومت تمام اضلاع میں اشیاء خورد و نوش کی آن لائن مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ یہ جو ڈیش بورڈ ہے، یہ جو آن لائن ڈیش بورڈ ہے، یہ وزیر اعلیٰ صاحب کے آفس میں بھی لگا ہوا ہے، وہ خود مانیٹر کر رہے ہیں، اور چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا اور ہمارے ایڈیشنل چیف سیکرٹری یہ آن لائن وہ چیک کر رہے ہیں، جس میں ہمارے جتنے بھی اشیاء خورد و نوش ہے، آٹا، چینی، دال، چاول، خوردنی تیل، پیاز، ٹماٹر، اور اس طریقے سے دودھ کے سٹاکس اور ترسیل، یعنی جو ترسیل ہے وہ بھی ساتھ چیک کیا جا رہا ہے اور یہ مانیٹر ہو رہا ہے۔ دوسری طرف ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ جو ذخیرہ اندوز اور منافع خور ہے ان کے حوالے سے جو ہم آرڈیننس لے کر آئے ہیں اس پہ سٹرکٹلی عمل درآمد ہو رہا ہے۔ اس میں جو ذخیرہ اندوزی کرنے والے 3 سال قید اور ذخیرہ اندوز شدہ مال کے 50% کے برابر جرمانے کی سزا ہوگی، اور اس آرڈیننس میں جو نشاندہی کرے گا اس کو 10% انعام ملے گا۔ اس کا مین مقصد، اور اس حوالے سے میں یہ آپ کو بتا دوں، ہم نے پورے صوبے میں کریک ڈاؤن شروع کیا ہوا ہے۔ پشاور میں بھی جو ہے ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس وقت جو یہ منافع خور ہے اور ذخیرہ اندوز ہے اس کو کسی طریقے طور پر وہ قابل معافی نہیں ہے۔ اس آرڈیننس یہ لے کر ہم اس لیے آئے کہ ہم نے ان کو کسی صورت میں، ایک طرف کرونا وبا جس کی وجہ سے ہمارے اموات ہو رہے، ہمارے صوبے کے جب یہ 104 لوگ ابھی تک اس کا شکار ہو چکے، اس کی انہوں نے موت اس کرونا وائرس کی وجہ سے ہوئے، اور دوسری طرف وہ لوگ جو میرے خیال میں کہ کسی پتہ نہیں ہے، ان کو اللہ کا ڈر نہیں ہے کہ ایسے موقع پہ ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کہ جو آرڈیننس جس وقت یہ لے کر آئے، اس وقت یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی نرمی، کسی قسم کی رعایت نہیں ہوگا، اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو سٹینڈنگ آرڈر ہے کہ ان کو بالکل فوری طور پر ان کے خلاف ایکشن لے، اور تمام ڈسٹرکٹ میں یہ ہو رہا ہے۔ رمضان کے مہینے میں جہاں پہ ان چیزوں کو ہم مانیٹر کر رہے ہیں، ساتھ یہ بھی ہے کہ میں تمام ان اپنے لوگوں کو میں ریکویسٹ کروں گا
अपील करूंगा कि दो तीन चीज़ों में, उस दिन कल हमने रेडी वालों और जो तंदूर वालों को, उनको जो 4 बजे का हमने टाइम था उनको हमने एक्सटेंड कर लिया, क्योंकि वो आवाम के लिए वो तंदूर का, क्योंकि हमारा रमज़ान है उस चीज़ के लिए, और फिर जो हमारे ये भाई हैं जो रेडी चलाने वाले, लेकिन उनसे ये हमने रिलैक्स कर दिया। लेकिन उसका मकसद ये था, ये चीफ मिनिस्टर साहब ने जब महमूद खान साहब ने ये फैसला किया, मकसद ये था कि हमने जो लोगों को कम से कम तकलीफ हो। लेकिन आप दूसरी तरफ इस मजबूरी को भी समझे कि ये जो 4 बजे का हमने फैसला किया हुआ है, उसके बाद रश, ये मेन जो है हमने रश के लिए किया है। सुबह से लेकर 4 बजे तक लोगों के पास टाइम है, वो जो डेली की खाने पीने की चीजें हैं वो खरीदे, और उसके बाद 4 बजे तक वो बंद करे। अभी जो तंदूर है वो हमने 4 बजे के बाद भी एक्सटेंड किया, लेकिन उसके लिए भी जो SOPs है जो हुकूमत ने बनाई हुई है, उसके ऊपर खुदारा अमल करे, वो बहुत जरूरी है। अगर हम SOPs पे अमल नहीं करेंगे, अगर अवाम साथ नहीं देगी, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? यह होगा कि कोई भी कोरोना वायरस आपके घर खुद नहीं चल कर आता, हम जाते हैं बाहर, और इस तरीके से बाहर से लेकर अपने, मैं जैसे हमेशा से कहता हूं, फिर वो उनको हम अपने घर ले जाते हैं, फिर अपना पूरी फैमिली, फिर पूरा खानदान, और फिर सार मोहल्ला, और फिर दिगर। तो ये है वो चीजें जिसका हमने ख्याल करना है। बिल्कुल मुश्किल वक्त है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन हमने इस कोरोना वबा का मुकाबला इस तरीके से करना है, ये जो हमने उसको शिकस्त देना है वो इस तरीके से देना है कि हमने एहतियात करना है, और हमने समाजी दूरी इख्तियार करनी, और वो समाजी दूरी इस वक्त बहुत जरूरी है। माह रमजान के महीने में मेरी तमाम मुखैर हज़रात से ये गुजारिश है, ये अपील है कि गरीब लोगों का, और फिर सफेद पोश लोग हैं हमारे जो हाथ नहीं फैला सकते, जो भी आपसे हो सके करें आप लोग। हमारे वज़ीर आला महमूद खान साहब ने खुद अपने जितने भी जायदाद के, उनके जो पर्सनल जो जायदाद है उसमें से किराया माफ करवाएं महीनों के। इस तरीके से हम हर किसी को ये कहते हैं कि ये मौका है, मुश्किल वक्त है, और हमने इस मुश्किल वक्त का डटकर मुकाबला इस सूरत में करना है कि कोई हमारे हमसाया में, इलाके में कोई गुर्बत की वजह से या 2 वक्त का जो खाना है माह रमजान में, उससे महरूम न रहे। ये हम सबकी ड्यूटी है एज ए मुसलमान। और फिर मैं ये कहूंगा कि इस वक्त हमने अपने घरों को इबादत गाह बनाना चाहिए। इस कोरोना वायरस से, ये मेरा ईमान है, बेंगे मुसलमान हम समझते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ हमें रुजू करना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला पाक इस वबा से हमारी कौम को महफूज रखे। और यह माह रमजान का महीना, ये कबूलियत का महीना है। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला, मुझे अल्लाह के जात पे मुकम्मल भरोसा है कि हमें अल्लाह ताला इस इम्तिहान से, इस कोरोना वायरस से हमारे अवाम को महफूज रखेगा। लेकिन उसके साथ जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उसको हमने निभाना है, और इंशाअल्लाह ताला मैं ये आपको अपनी हुकूमत, वज़ीर आला महमूद खान साहब की तरफ से, और फिर अपनी फेडरल हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की तरफ से, मैं आपको ये तसल्ली देता हूं कि जो भी हमारे वसाइल है वो हमारे अवाम के ऊपर कुर्बान है। मैं इस मौके पे आपको बताऊंगा कि हमारे पास 3-4 ऐसे लोग आए। एक ये जो ताफ्तान से ज़ायरीन आए, और फिर उसमें से क्वारंटाइन किए गए जो भी उसमें कुछ सेहतियाब होकर, और वो तकरीबन घरों को, अपने अपने घरों को चले गए। इस तरीके से कुछ लोग क्वारंटाइन हो चुके हैं, और वो भी जैसे उनका वो टाइम पीरियड होता है जो 14 दिन होते हैं, और साथ फिर दोबारा हम उसकी टेस्टिंग कराएंगे, साथ साथ भेजेंगे। अफगानिस्तान से तुरखम बॉर्डर के तकरीबन जो हमारे पास आए 1987 अफराद आए हैं,
तोरखम बॉर्डर के थ्रू, जिसमें से 972 लोग की जो है वो नेगेटिव आए, उनको अपने घरों की तरफ भेजा गया। और इस तरीके से जैसे जैसे नेगेटिव आ रहे हैं उनको हम घरों में भेज रहे हैं। अगर किसी में पॉजिटिव आता है तो क्वारंटाइन सेंटर, पहले क्वारंटाइन सेंटर फिर आइसोलेशन सेंटर। अगर ज़्यादा अलामात ज़ाहिर आते हैं और उससे ज़्यादा ख़तरे की तरफ बात जाती है तो उसके लिए हाई डिपेंडेंसी हमने कायम किए हुए यूनिट्स पूरे सूबे में। इस तरीके से जो हमारे पिशावर एयरपोर्ट के ज़रिए गल्फ़ स्टेट और दीगर जो हमारे भाई आए हैं, 684 लोग अभी तक आए हैं। इसमें भी लोगों में जो है वो टेस्ट पॉजिटिव आया है, और जिनमें नेगेटिव आया उनको हमने अपने घरों की तरफ रवाना कर दिया और हम भेज रहे हैं। और जिनमें वो है वो जो 14 दिन का जो क्वारंटाइन है वो करके अगर पॉजिटिव इसमें आता है तो वो भी सिलसिला। और ये जो 684 लोग हैं इसमें सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के सूबे के लोग नहीं हैं, दूसरे सूबे के लोग भी हमारे पिशावर एयरपोर्ट के ज़रिए, तो उनका भी हम ख्याल रख रहे हैं। इस तरीके से हमारे पास जो हमारे तबलीगी जमात के लोग हैं, वो उस दिन वज़ीर आला महमूद ख़ान साहब से तबलीगी जमात के अकाबरीन मिले थे। वहाँ पे उन्होंने उसके लिए फोकल पर्सन कायम फोकल पर्सन जो है ना वो कर दिया, नॉमिनेट कर दिया, जो होम डिपार्टमेंट के साथ वहाँ पे एक फोकल पर्सन होगा, जो बैरून मुल्क के हमारे जो तबलीगी जमात के भाई हैं उनमें जिनमें नेगेटिव आ रहा है या जिनका वो टाइम जिनमें पॉजिटिव भी आया हुआ है, जैसे जैसे उनके टेस्टिंग हम दोबारा कराएंगे और पहले भी हम कर चुके, उनको वो बाहर भेजेंगे जो बाहर ममालिक हैं, जो कि तकरीबन 310 लोग हैं। और इस तरीके से जो अदर सूबे के 70% वो है, उनका भी यही सिलसिला है। हमारे वज़ीर आला साहब के स्टैंडिंग आर्डर है कि हमने तमाम मकातब फ़िक्र के जितने भी हमारे लोग हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तानी भाई आ रहे हो, चाहे वो गल्फ़ स्टेट से और दूसरे ममालिक से पिशावर एयरपोर्ट के ज़रिए आए हो, चाहे हमारे भाई ताफ्तान से आए थे, चाहे हमारे तबलीगी जमात के अकाबरीन भाई हैं, सब के लिए वज़ीर आला साहब के स्टैंडिंग आर्डर है कि उनका ज़बरदस्त तरीके से हमने ख्याल रखना है। और इंशाअल्लाह ताला कोरोना वायरस को हमने शिकस्त इस सूरत में देना है कि एज ए नेशन, एज ए पाकिस्तानी, जैसे हमारे डॉक्टर पैरामेडिक स्टाफ जैसे कुर्बानी दे रही है और फ्रंट फुट पे जो है, मैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद साहब की शहादत और जो हमने उसके लिए सिविल अवार्ड का भी चीफ मिनिस्टर साहब ने वो कर दिया है, नामजद कर दिया है, और हम पैकेज भी दे रहे, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। उन जैसे डॉक्टर्स हमारे जो और डॉक्टर हैं जो दिगर सूबे में शहीद हुए इस कोरोना वबा की वजह से, और जो हमारा पैरामेडिक स्टाफ है, जो हमारे और डिपार्टमेंट्स के लोग हैं जो फ्रंट फुट पे इस वक्त है, सबको यही जो है हमारा जज्बा होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला हमारा रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला पाक से हमें रुजू करना चाहिए, अपने घरों को हमें बतादगाह बनाने चाहिए। अल्लाह ताला हमें देख रहा है, चाहे हम जिधर भी हो, हमने अल्लाह ताला के यहाँ गिड़गिड़ाना चाहिए ताकि इस कोरोना वायरस की वबा से हमारी अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सूबे में कोरोना से मजीद 6 अमवात हुई हैं और मजमूई तादाद 104 हो गई है। कोरोना के साथ साथ भूख और गुर्बत के चैलेंज का भी सामना है। सूबे में एहसास